Assalamualaikum class 10. I hope you're all fine. Our new topic today is classification of organic compounds. All non-organic compounds have been broadly divided into two categories depending upon their carbon skeleton. जितने organic compounds अभी तक पता हैं उन्हें दो categories में divide किए उनके carbon skeleton की basis पर open chain और acyclic compounds और closed chain or cyclic compounds. So what are open chain or acyclic compounds? Open chain compounds are those in which the end carbon atoms are not joined with each other. ऐसे compounds जिनमें जो end carbon atom है वो किसी के साथ join नहीं है. In this way they form a long chain of carbon atom. वो एक long chain बनाते हैं carbon atoms की. These chains may be either straight or branched. For example, straight chain compounds are those in which carbon atoms link with each other through a single, double or triple bonds forming a straight chain. Straight chain compounds वो हैं जिनमें carbon atoms एक दूसरे के साथ link कर रहे हैं single, double या triple bond से और एक straight chain बना रहे हैं. Branch chain compounds are those in which there is a branch along a straight chain. Branch chain compounds वो हैं जिनमें एक ब्रांच है स्ट्रेट चेन के साथ. ओपन चेन कंपाउंड्स हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड. क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ चेन आर नॉट फ्री. क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड है जिनमें जो कार्बन एटम चेन के एंड में आ रहे हैं वो फ्री नहीं है. दे आर लिंक्ड टू फॉर्म अ रिंग. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, homocyclic or carbocyclic compounds या heterocyclic compounds. So what are homocyclic? Homocyclic or carbocyclic compound contains rings which are made up of only one kind of atom, that is carbon atoms. Homocyclic compound वो हैं जिनमें rings हैं जो सिर्फ एक तरह के atom से बनी हुई है. इन्हें further दो में divide किया है, aromatic compounds, alicyclic compounds. Aromatic compounds कौन से हैं? These organic compounds contain at least one benzene ring in their molecule. Aromatic compounds वो compounds हैं जिनमें at least एक benzene ring है उनके molecule में. Benzene ring क्या है? 6 carbon atom से बना हुआ एक ring है जिनमें 3 alternate double bonds हैं. इन्हें कहते हैं aromatic because of aroma और smell they have. और जो जिन compounds में benzene ring होता है उन्हें benzenoid compounds कहते हैं. So what are alicyclic or non-benzenoid compounds? Carbocyclic compounds जिन्हें benzene ring नहीं है वो alicyclic या non-benzenoid compounds हैं, जैसे cyclobutane, cyclohexane, इनमें कोई benzene नहीं है. What are heterocyclic compounds? Cyclic compounds that contain one or more atom other than that of carbon atom in their rings. ऐसे compounds जिनमें एक या ज़्यादा atom है उनके रिंग्स में उसे हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं. जैसे सारा रिंग कार्बन का था लेकिन एक एस है थायोफीन, पायरोडीन में एक एन आ गया. क्लासिफिकेशन को हम ज़्यादा समराइज ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे दो तरह के, ओपन चेन या साइक्लिक. ओपन चेन फॉर दो तरह के, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन. साइक्लिक या होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक. होमो फर्दर एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं. So what is diversity and magnitude of organic compounds? There are total of 118 elements known today. आज तकरीबन 118 elements हमें पता है. The number of organic compounds is more than 10 million. जो organic compounds या carbon compounds हैं वो 10 million से ज़्यादा हैं. The number is far more than the number of compounds of all remaining elements taken together. ये नंबर बहुत ज़्यादा है. जब बाकी तमाम elements को इकट्ठा करो तो कार्बन कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज़्यादा है. एग्जिस्टेंस ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न. जो लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस है फॉलोइंग रीजन्स की वजह से है. कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या है? द मेन रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज दैट कार्बन एटम कैन लिंक विद वन अनदर बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम. जो मेन रीज़न है इस लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस की वो ये कार्बन एटम्स जो होते हैं वो किसी और के साथ लिंक कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू
और इस तरह से लॉन्ग चेन्स या रिंग्स बना सकते हैं। ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ब्रांच भी हो सकती हैं। और जो एबिलिटी है कार्बन एटम की, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये एबिलिटी कार्बन एटम की जिसे वो लिंक करता है दूसरे एटम्स के साथ, उसे कैटिनेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टू बेसिक कंडीशंस फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन आर। दो कंडीशन जो एक एलिमेंट में होनी चाहिए कि वो कैटिनेशन एग्जिबिट कर सके, वो क्या है? एलिमेंट्स शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2। एलिमेंट्स की वैलेंसी या तो 2 होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। बॉन्ड्स मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स should be stronger than the bonds made by the elements with other atoms, especially oxygen। जो bonds एक elements के बन रहे हैं अपने atoms के साथ, वो stronger होगा उस bond की निस्बत जो किसी और atoms के साथ बन रहा है। For example, oxygen। Both silicon और carbon have similar electronic configuration, लेकिन carbon shows catenation whereas silicon doesn't. It is the reason that C-C bonds are much stronger than Si-Si bonds. On the other hand, SiO bonds stronger हैं और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं है। सिलिकॉन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। अनदर रीजन फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। एक और रीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अबंडेंस की क्या है? आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर्स इफ दे हैव सेम मोलेक्युलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंपाउंड्स आइसोमर्स होते हैं अगर मोलेक्युलर फार्मूला सेम हो लेकिन जस्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। आइसोमेरिज्म क्या करता है? एड्स टू पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे एक फार्मूला है C5H12 पेंटेन का, ये 3 स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकता है, एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो आइसोमर्स का नंबर है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। थर्ड इज स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, कार्बन जो है बड़े स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन के साथ। दिस इनेबल्स इट टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। मल्टीपल बॉन्डिंग। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावेलेंसी, अपनी टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। This further adds to possible number of structure. For example, 2 carbons in ethane are linked by single covalent bond, but a double covalent bond ethylene और triple covalent bond in acetylene। मतलब 2 कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड हो तो इथेन, सिंगल बॉन्ड हो तो इथेन है, डबल हो तो इथाइलिन है और ट्रिपल हो तो एसिटाइलिन है। So what are general characteristics of organic compound? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओरिजिन क्या है? नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स और रॉक्स। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिनरल्स और रॉक्स से ऑब्टेन होते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है? कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन है। दे आर मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ऑन द अदर हैंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट जितने एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे बन रहे होते हैं। कोवेलेंट लिंकेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन आयोनिक बॉन्ड। सॉल्युबिलिटी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर लिंकेजेस आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें नॉन पोलर लिंकेजेस हैं वो सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे अल्कोहल, इथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स with ionic bonds are soluble in polar solvents like water. Electrical conductivity क्या है? Due to presence of covalent bonds, organic compounds are poor conductor of electricity. Covalent bonds की presence की वजह से organic compound poor conductors हैं electricity के, जबकि inorganic compounds nature में ionic है
और गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के मोल्टन स्टेट और एक्वा सोल्यूशन में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और वो वोलेटाइल है नेचर में। इसके बरक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। स्टेबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स से तो लेस स्टेबल है। कंबस्टिबिलिटी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर कंबस्टिबल, inorganic compounds are non-combustible. Isomerism, a main characteristic of organic compounds which differentiate them from inorganic is tendency to exhibit phenomena of isomerism. Inorganic substances में isomerism बहुत rare है. Rate of reaction, due to presence of covalent linkages, the reactions of organic compound are molecular in nature. Covalent linkages की presence की वजह से जो reaction है organic compounds के वो molecular है nature में, वो स्लो है एंड दे रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन such as temperature, pressure और catalyst.